Hello friends, today I will explain the 12th class poem, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender, who was an essayist and English poet. तो इस पोएम में क्या है? ये पोएम एक सोशल सटायर है और ये द गॉड डेड अफ्रेड उस बुक का एक पार्ट है जो कि 1949 में पब्लिश हुई थी. हेयर पोइट कन्वेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर स्लम चिल्ड्रन. यहाँ पर पोइट स्लम चिल्ड्रन की एजुकेशन की बारे में उसकी इम्पोर्टेंस बताता है. ये पोएम एक लिरिकल पोएम है जिसकी थीम सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी है. यहाँ पर पोइट ने स्लम डर्टी सेटलमेंट को डिस्क्राइब किया गया है. एलिमेंट्री, अब हम देखते हैं एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी. और इस पोएम का जो बैकग्राउंड है वो क्लासरूम का है. तो जो फर्स्ट थ्री स्टेंजा है इस पोएम में जो फर्स्ट थ्री स्टेंजा है उसको पोइट ने डिस्क्राइब किया है उसमें स्लम चिल्ड्रंस की प्रॉब्लम को. और जो लास्ट स्टेंजा है पोइट डिस्क्राइब्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. इसमें सोल्यूशन बताया गया है. नाउ वी कम टू आवर स्टेंजा फर्स्ट. फार फार from gusty waves these children faces. Here far means large distance. Gusty means blowing strongly, झोंकेदार, full of energy. These children faces. Here these children refers to slum childrens. Far. Why the poet uses the far word 2 times? To show a large distance. Here यहाँ पर poet ने जोर देकर बोला है far. और far word में repetition device है. Now explanation. The faces of these children are very far away from the energy as they should be. Far from gusty waves these children faces. The faces of these children are very far away from the energy as they should be. Next, like rootless weeds the hair torn round their pallor. Like rootless में जो डिवाइस है वो सिमिलर डिवाइस है. Here rootless means uprooted without any attachment. There is no attachment here. स्लम चिल्ड्रंस के ऑर्डर में क्या बोलेंगे? There is no attachment of children to anyone. Torn round मतलब scattered disorderly. Round their pallor means pale faces. The hair of the children are scattered on their pale faces. Why the faces of children are pale? Due to lack of nutrition, due to lack of nourishment. Next, the tall girl. Here tall girl में एक adjective यूज़ किया गया है. As we use tall, girl के साथ tall यूज़ किया गया है. Who is taller than other? Weighed down. With her weighed down head. Weighed down means bent down. Why the girl weighed down head? Due to depression. Weighed down means bent down. Due to depression वो weighed down है, झुकी हुई है. Next, the paper seeming boy. The paper seeming boy में metaphor device है. The paper seeming boy here comparison draw किया गया है. Comparison between a paper and a boy. As a paper is white, जैसे कि paper white होता है and in the same way the boy is thin and looks like white. The boy is looking like a paper. With rat's eyes में भी मेटाफर डिवाइस है. उसकी आइज़ कैसी है? रैट की तरह. रैट्स आइज़, एज रैट्स आइज़ इज ग्रीडी एंड फुल ऑफ हंगर. जैसे कि रैट्स की जो आइज़ होती है वो ग्रीडी होती है, हंगर से भरी हुई होती है. इन द सेम वे द बॉयज़ आइज़ इज ग्रीडी एंड फुल ऑफ हंगर. आगे, द स्टंटेड अनलकी हेयर of twisted bones reciting a father's gnarled diseases, his lesson from his desk. The stunted means undeveloped. Here stunted means undeveloped. Unlucky means unfortunate. Here means successor, uttaraadhikari. The boy's body is underdeveloped and he is unfortunate successor of his father. वो अपने फादर का unfortunate successor है. Of twisted bones. Twisted means bent. Reciting means होता है enumerate, मतलब describing one by one. A father's gnarled means knotty, गांठदार. Disease, बीमारी. Now here poet says that the boy's body is undeveloped and he is unfortunate successor of his father because he has deformed body and his bones are bent. उसकी जो bones है वो झुकी हुई है
अब जो वो बॉय है वो कर क्या रहा है, डिफॉर्म बॉय इज रिसाइटिंग अ लेसन. रिसाइटिंग अ लेसन इस मीन्स में क्या बताया गया कि ही इज रिसाइटिंग इज फादर्स नाल डिजीज, मतलब उसके जो फादर को डिजीज थी और उसके जो ग्रैंडफादर को डिजीज थी वही अब उसके बेटे को है, अब उसी लड़के को वो डिजीज है. फादर्स नाल डिजीज में मेटाफर डिवाइस यूज़ किया गया है. ही वॉज एनमरेटिंग हिज फादर्स नाल डिजीज, वो अपने फादर्स की जो फादर की डिजीज थी उसको एनमरेट कर रहा है, मतलब अब उसमें भी वो डिजीज है. ही इज रिसाइटिंग द लेसन फ्रॉम हिज डेस्क because he is not able to stand due to his deformed body. Next, at back of the dim class, इधर से हम अब क्लासरूम के बारे में बताया गया, ये क्लासरूम कैसा है. at back of the dim class, how is the classroom? classroom कैसा है? classroom is dim because there is no proper arrangement of light. दिस क्लास बिकॉज दिस क्लास इज इन स्लम एरिया, स्लम एरिया में तो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है. अब कुछ और स्टूडेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. वन अननोटेड, अननोटेड मतलब अननोटिस्ड, स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन अ ट्री रूम. ट्री रूम मतलब होल इन अ ट्री. अदर देन दिस, अब वाई द स्टूडेंट इज नॉट अपीयर्ड, अब वो जो स्टूडेंट था जो पीछे बैठा हुआ था वो दिख क्यों नहीं रहा था, बिकॉज ही वॉज सिटिंग एट द बैक, वो क्लासरूम के पीछे हुए बैठा था. एंड क्लासरूम इज डिम एंड देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट, दैट्स वाई ही इज अननोटिस्ड. वाई द स्टूडेंट्स, हाउ द स्टूडेंट लुक, स्टूडेंट कैसा था, स्वीट एंड यंग. हिज आईज इज ड्रीमी, नाउ हिज आईज लिव्स इन अ ड्रीम. His eyes is dreamy, उसकी जो eyes है वो dreamy है because he is dreaming about squirrel's game outside the classroom. As there is a hole in a tree in which squirrel live, the squirrel come in the hole and then go down, and the squirrel do this again and again. The squirrel come in the hole and go down as he was playing for food and shelter. Squirrel is playing. The boy at the back is dreaming about his bright future. अब tree room क्या है, place in a tree. Other than this, यहाँ पर other than this का word use क्यों किया गया? The boy has so many dreams. The boy is dreaming about everything except this dull classroom. तब जो लड़का है वो सब कुछ इमेजिन कर रहा है, सब चीज़ के सपने देख रहा है, लेकिन उस डल क्लासरूम जो स्लम क्लासरूम था स्लम में, उसके अलावा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि गंदे एनवायरनमेंट में रहे. ओके, इट्स क्लियर. नेक्स्ट, सेकंड स्टैंजा. ऑन सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, जो सोर क्रीम वॉल्स, अब क्लासरूम की जो वॉल्स है वो डिस्क्राइब की गई है. सोर मतलब अनप्लीजेंट, क्रीम मतलब थोड़ी येलोइश. क्लासरूम की वॉल्स कैसी हैं, सोर क्रीम वॉल्स. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर ऑफ वाइट इन कलर, दे आर नॉट फ्रेश पेंटेड. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर स्मेली क्रीमी वॉल्स. डोनेशंस, यहाँ डोनेशंस वर्ड क्यों यूज़ किया गया, थिंग्स गिवन एज अ गिफ्ट. गिफ्ट कैसे है, एज अ विजिटर्स केम time to time in the slum area and give donations, and from that donations some posters are purchased and pasted on the walls. तो अब कुछ पोस्टर्स की बात की गई है. फर्स्ट, शेक्सपियर्स हेड. तो ये फर्स्ट पोस्टर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, कल्चर, एजुकेशन, इंटेलिजेंसी एंड राइजिंग सन. शेक्सपियर कौन था, मोर प्रोग्रेशन इन इंग्लिश, जिसने बहुत ज़्यादा इंग्लिश में प्रोग्रेशन कर चुका था. बट दिस पोस्टर, लेकिन जो ये पोस्टर है, इज़ यूजलेस फॉर चिल्ड्रन. और ये यूजलेस क्यों है, वाई यूजलेस, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द विलियम शेक्सपियर, दे डोंट नो अबाउट हिज अचीवमेंट्स एंड व्हाट आर हिज वर्क्स. According to them, according to slum children, he is just bald-headed. वो सिर्फ एक बिना बालों का एक इंसान है, bald-headed person. अब नाउ सेकेंड पोस्टर डिस्क्राइब किया गया है, क्लाउडलेस एट डान. क्लाउडलेस एट डान, सेकेंड पोस्टर. दिस पोस्टर, ये पोस्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्ली मॉर्निंग सीन को रिप्रेजेंट करता है. द प्लीजेंट मॉर्निंग इज डिस्क्राइब बिकॉज देर वॉज नो क्लाउड इन दैट सीन. द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट, बट
दिस पोस्टर इज ऑल्सो यूजलेस फॉर स्लम चिल्ड्रन. अब यूजलेस क्यों है? वाई यूजलेस? बिकॉज they never enjoy such kind of morning. Their all mornings is dusty and full of dust. अब now third poster, civilized dome riding all cities. civilized dome, यहाँ पर डोम मतलब बिल्डिंग. दिस पोस्टर इज ऑफ डेवलप्ड सिटी. डेवलप्ड सिटी के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. अब एक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से द सिटी इज सिविलाइज? हम कैसे कह सकते हैं कि सिटी सिविलाइज थी? बिकॉज देयर इज हाई बिल्डिंग, जहाँ पर हाई बिल्डिंग थी. अब ये भी पोस्टर उन स्लम चिल्ड्रंस के लिए यूजलेस है जो कि वहाँ पर उनकी क्लासरूम में लगा हुआ है. बिकॉज दे नेवर विजिट सच काइंड ऑफ प्लेस, क्योंकि वो ऐसी प्लेस पर कभी गए नहीं है. होल लाइफ दे स्पैन इन अ डर्टी एरिया. नेक्स्ट आता है बेल्ड फ्लावरी टायरस वैली. बेल्ड फ्लावरी, ये भी नेक्स्ट जो पोस्टर है, फोर्थ पोस्टर, ये भी उनके लिए कैसा है? दिस पोस्टर रिप्रेजेंट नेचुरल ब्यूटी. ये नेचुरल ब्यूटी रिप्रेजेंट करता है. बेल्ड मतलब हैविंग म्यूजिक. टायरस एक ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, उस चीज़ को बोला गया है. वैली एक घाटी है. दिस पोस्टर रिप्रेजेंट नेचुरल ब्यूटी. देयर आर मैनी फ्लावर्स एंड म्यूजिक इन दैट वैली. उस वैली में बहुत सारे फ्लावर्स हैं. सो दिस पोस्टर रिप्रेजेंट नेचुरल सीन. लेकिन ये भी यूजलेस है क्योंकि इन स्लम चिल्ड्रन ने कभी ऐसा एनवायरनमेंट कभी सफ़र ही नहीं किया, मतलब देखा ही नहीं. उनका हर जो भी एनवायरनमेंट होता था वो बहुत ही डर्टी हुआ करता था. फिफ्थ पोस्टर क्या है? एन ओपन हैंडेड मैप. ओपन हैंडेड मैप तो अ मैप क्या होता है? ये अ मैप ड्रोन बाय डिक्टेटर्स एंड रिच पीपल अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल. ये भी जो स्लम चिल्ड्रन है उनके लिए यूजलेस है, क्योंकि बिकॉज दे इन दैट मैप स्लम एरिया इज़ नॉट प्रॉपरली मैंशनड. उस मैप में स्लम एरिया बिल्कुल भी अच्छे से मैंशन नहीं किया गया और उनकी जो जगह है वो मेंशन की ही नहीं गई. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. अवॉर्डिंग मतलब गिविंग एज अवॉर्ड. इट्स वर्ल्ड. यहाँ पर इट्स वर्ल्ड रेफर्स किया गया है रिच पीपल इम्पोज. यहाँ पर इम्पोज करना, फोर्सफुल देयर वर्ल्ड ऑन पुअर पीपल. एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रंस दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड. These windows where they are sitting presently and their surrounding. The slum children is refer here. The slum area is refer here. The map hung on the wall is not their own as a map, and their world refers to the rich world. Next, where all their futures painted with a fog. All their future refers to slum children. The future of the slum children in the rich world is painted with a fog, not clear, as their future is not clear, weak, dark and uncertain. Painted with a fog. इसमें डिवाइस है मेटाफर. नाउ हम आगे चलते हैं. A narrow street sealed in with a lead sky. लीड स्काई मतलब डस्टी स्काई. नैरो स्ट्रीट मतलब लिमिटेड. स्ट्रीट मतलब लेन. द एरिया ऑफ स्लम इज लिमिटेड एंड देयर प्रोग्रेस इज क्लोज. सील्ड मतलब क्लोज्ड. दे लिव इन अंडर डर्टी स्काई. लीड स्काई में डिवाइस है मेटाफर. आगे फार फ्रॉम रिवर्स capes and stars of words. Far from river. Here far use these children is far from happiness, openness and education. Capes means openness. Star of words here refers to education. Star of words में device कौन सी है? metaphor device. As stars are very far away from us, in the same way education is very far away from the slum children's. Next stanza. Surely Shakespeare is wicked. Surely मतलब definitely. Shakespeare wicked मतलब bad person. The map a bad example. Here Shakespeare is wicked. Shakespeare बुरा क्यों है? Bad person for slum children. Not noble, not good person. Why? Because they don't know about William Shakespeare, his great achievements and his great work operation. The map is bad example. Map कौन सा मैप? ओपन हैंडेड मैप जो कि क्लासरूम की वॉल्स पर लगा हुआ है. बिकॉज इन दैट मैप देयर ओन वर्ल्ड, देयर ओन एरिया, देयर स्लम एरिया इज नॉट प्रॉपरली मैंशनड.
with ships and sons and love tempting them to steal. With ships, tempting मतलब attractive, them here refers to slum children's, to steal, tempting, attracting, inciting. In rich world there are many attractive things in their world, like ships, sons and love. These things are out of their reach. They are attracted by these things, so they try to grab them, snatch them and run away. In this way bad habits are developed in them. For lives that slyly turn in their cramped holes, slyly मतलब secretly, they spend their whole life in the cramped holes. Cramped मतलब narrow holes. इन एक्चुअल होल्स ऑफ रैट्स, यहाँ पर नैरो, यहाँ पर रोड्स जैसे रैट होते हैं, जो चूहे होते हैं, उनके होल्स बिल्कुल नैरो होते हैं. होल्स ऑफ रैट, जैसे कि होल्स ऑफ रैट आर स्मॉल बट द हाउसेज ऑफ स्लम चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्मॉल. सो कंपेरिजन ड्रोन बिटवीन दैम. कंपेरिजन ड्रो किया गया तो मतलब मेटाफॉर डिवाइस यूज़ की गई है. फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट. फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट on their slag heap, these children's. फोग यहाँ पर डिवाइस यूज़ की गई है फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट में, डिवाइस मेटाफर. हाउ दे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया हाउ देयर मेजरेबल कंडीशन इज एक्सप्लॉइटेड. स्लैग मतलब यहाँ पर वेस्ट मटेरियल. दे आर मेजरेबल कंडीशन कैसी है उनकी. दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय हाई सोसाइटी फ्रॉम डे टू नाइट एंड टॉर्चर्ड, एंड देयर टॉर्चर इज एंडलेस विदाउट एनी एंड एंड गोन लाइफ टाइम. हीप ऑन देयर स्लैग हीप. हीप हियर रेफर्स टू पाइल्स, ढेर कूड़े का, किसी चीज़ का ढेर होता है ना, उसको बोलते हैं हीप. वेस्ट मटेरियल, स्लैग मतलब वेस्ट मटेरियल्स. वेस्ट मटेरियल कैसे है. होल टाइम दे वंडर ऑन द पाइल्स ऑफ वेस्ट मटेरियल. Wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. Peeped through मतलब emerging. फिजिकल वीकनेस यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है चिल्ड्रंस की. दे आर फिजिकली वीक एज देयर बोन्स कम आउट फ्रॉम द स्किन. बहुत ज़्यादा स्किनी है, थिन है. स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, यहाँ पर स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील क्या शो कर रहा है. पॉवर्टी शो कर रहा है. और स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील में मेटाफर डिवाइस यूज़ की गई है. हाउ दे आर पुअर. पुअर कैसे हैं यहाँ पर स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील में डिस्क्राइब किया गया है. द स्पेक्टिकल्स आर मेड अप ऑफ स्टील. स्टील के बनाए गए हैं. स्टील रेफर्स टू हार्डशिप ऑफ, यहाँ पर स्टील को कैसे रेफर किया है. हार्डशिप ऑफ लाइफ, इन्फीरियर क्वालिटी, चीप क्वालिटी. with mended glass, with mended मतलब repaired glass, like bottle bits on stone. like bottle bits on stone में device है simile. like bottle bits on stone, when we hit the bottle with stone then they are scattered. In the same way, when these children face the harsh reality of the world, their dreams are scattered and break. All their time and space are foggy slum. All their time and space are foggy slum. They spend their time in their dirty slum area without any objection. So bloat their map with slums as big as tomb. Their maps here refers to open-handed map. Bloat मतलब stain, blemish, धब्बा. As big as tomb, as it is large from its size. Slum is seen as blemish in the map and between the high buildings. Slum as big as dome. इसमें डिवाइस कौन सी है. Similar डिवाइस. Next, last stanza. Unless governor, inspector and visitor. Here, unless governor, inspector, visitor. In the last stanza, poet described the solution of those children. How they can improve the condition of those children. कैसे governor, inspector, visitors help कर सकते हैं. In this stanza, the poet is urging, requesting to governor, inspector and visitor. Why the poet is requesting to governor, inspector and visitor? Because they are powerful people. Only powerful people can change their history. This map becomes their window. And these windows. Here, map कौन सा. Open-handed map. This map can become the map of the slum children when the governor, inspector, visitor will cooperate. These windows refers to slum area where they are lived in, where they are spending their life, where they are living presently. That shut upon their lives like catacombs. Catacomb means underground graves.
लाइक यहाँ पर लाइक कैटाकॉम्स में डिवाइस है सिमिली डिवाइस. लाइक कैटाकॉम्स शट अपॉन मतलब ब्लॉक, देयर लाइव्स मतलब प्रोग्रेस. As in the underground graves, the progress of anyone is not possible. In the same way, the slum area is like grave for slum children. The progress is not possible by living in these slum areas. So to help them to come out from their situation, break ओ break, open till they break the टाउन. ब्रेक ओ ब्रेक, यहाँ पर डिवाइस कौन सी है? रिपीटेशन. ब्रेक ब्रेक वर्ड का रिपीटेशन रिपीट हुआ है तो रिपीटेशन. एंड एलिट्रेशन बी बी वर्ड और ओ. दे ब्रेक द टाउन. ब्रेक ओ ब्रेक ओपन. टू ब्रेक द, अब यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है? टू ब्रेक द ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स. द बैरियर्स कम इन द वे ऑफ देयर प्रोग्रेस हैव टू ब्रेक एंड दिस इज़ वेरी अर्जेंट. टिल दे ब्रेक द टाउन. टिल दे ब्रेक द टाउन मतलब दे यहाँ पर रेफर किसको किया गया है? स्लम चिल्ड्रंस को. टू कम आउट इन द टाउन एज प्रेजेंटली दे लिव इन स्लम एरिया, नॉट एनी इन टाउन सिटी. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड. ग्रीन फील्ड्स मतलब ग्रीनरी. मेक देयर वर्ल्ड मतलब स्लम्स एरिया, चिल्ड्रन वर्ल्ड. द to show them the green fields, to enjoy enjoy them to nature, greenery, to visit in openness. Run azure on gold sands and let their tongues. Run azure, यहाँ पर gold sands का मतलब golden sand on coast means happiness. Run azure means under blue sky. Here seaside refers to happiness. They enjoy seaside and they keep happy. Run naked into books, the white and green leaves open. Let their tongues. Let their tongues means to free their tongues, means they should have right to express their views freely. Here let their tongues and run naked into books, the white, green and green leaves open. The white refers to the pages of the book, means education. There is a requirement of education for them. It must provide education by opening pages of book. Green leaves refers to openness and nature, to bring the slum children in open area. History readers whose language is the sun. Only those person can change their history who has power and energy like sun, who are confident, and those people are governor, inspector and visitor. So the poet is requesting to these peoples, so these people can only hope or help these childrens. Now तो पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है. अब हमने क्या पढ़ा पूरी पोएम में? फर्स्ट पोएम में तो हमने डिस्क्राइब किया था कुछ स्टूडेंट्स के बारे में. दूसरी स्टैंजा में हमने डिस्क्राइब किया था कि जो क्लासरूम है वो कैसा है, कैसे उसकी जो वॉल्स हैं, कैसे कौन कौन से उसके ऊपर पोस्टर्स लगे हुए हैं. थर्ड में हमने कुछ शेक्सपियर के बारे में और उनकी फिजिकल वीकनेस के बारे में डिस्क्राइब किया, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी. इन तीनों स्टेंजा में हमने प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब की. नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा में पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया? उसकी प्रॉब्लम के सल्यूशन को डिस्क्राइब किया. तो पोएम यहीं ख़त्म होती है. थैंक यू.